सो ये अब उसके बाद फिर थोड़े कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट में। तो एक होता है IP, दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इट इज़ द सिंपलेस्ट, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर द इंटरनेट। अ टाइप ऑफ कंप्यूटर एड्रेस, फिर होता है UDP। नाउ it is used in some parts of the TCP protocol. It does not have capacity like TCP. The name of small size data packets is datagram, ठीक है। तो यहाँ UDP में small size data packets का नाम datagram होता है, और UDP is unable to recover it on being lost of the datagram during transmission. तो ये थोड़ा risky होता है। It is used to work together with the internet protocol, ठीक है, IP protocol। तो UDP अकेले में काम नहीं कर सकता, ये IP प्रोटोकॉल के साथ ही काम करता है। दूसरी चीज़ की UDP इज़ अनेबल टू रिकवर व्हेन अ डेटाग्राम इज़ लॉस्ट, राइट। दैट इज़ वन थिंग अबाउट UDP, ठीक है। एंड नेम ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ डेटा पैकेट इन UDP इज़ कॉल्ड डेटाग्राम। नाउ व्हाट अबाउट IP? तो IP यूज्ड टू इंक्लूड द इंडेक्स एंड रिसीवर्स IP एड्रेस in each of the packet when split into multiple packets during transferring data. IP बेसिकली एड्रेस के लिए रिसीवर्स के IP एड्रेस and the index of the index like the sequencing of the data packet के लिए इस्तेमाल होता है। बस दो चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, क्योंकि data may be large and it has to be broken down into several packets. So how do you sequence the packets and receiver gets the data packets in the right order? तो उसके लिए index होता है, indexing, right? और index as well as the receivers का address का ध्यान रखने वाला कौन है? तो IP है, internet protocol. But again, internet protocol doesn't work alone. It works in conjunction with UDP. While working with UDP is unable to recover it if in case a datagram is lost during transmission. So now you know the two functions of IP and two characteristics of UDP. ठीक है? Now let's look at TCP. So communication is impossible without TCP. It is used to allow connection and data transfer between two devices. TCP guarantees data delivery by arranging the packets correctly, so it is quite dissimilar to UDP. It is suitable to work with together with IP. So यहाँ पे क्या है कि used to recover it when the packets are lost, तो फिर TCP का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जब हमको बस स्पीड का मेरे ख्याल से ध्यान रखना होता है तो फिर हम UDP का इस्तेमाल करते हैं, because then it is faster, but then it has a risk of not being able to recover the lost data packet, datagram, ठीक है। So just like UDP is used in conjunction with IP, TCP is also used in conjunction with the IP. Then we have this SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. तो इनके साथ POP3 भी यूज़ किया जाता है, Post Office Protocol. So both used for the same task, where SMTP is used to send mails, POP3 is also used to receive mails. तो बस इतना याद रखना है। SMTP as well as Post Office Protocol, these are used to receive and receive mails, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देना है, देखो हमने चार चीज़ें पढ़ी यहाँ पे। एक होता है UDP, सो यहाँ पे स्पीड होती है बट not able to recover the lost datagram. UDP is used in conjunction with IP, ठीक है, and the smallest data packet is called datagram. इसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करो तो उसका दो ही फंक्शन होता है, एक इंडेक्सिंग और दूसरा रिसीवर्स का IP एड्रेस का ध्यान रखना। In case when the packets when split into multiple packets during transferring data, तो फिर वो TCP का काम है, सॉरी दैट इज़ IP का काम है, सॉरी। देन TCP का काम क्या है कि it guarantees recovery of datagrams in case they are lost during the transmission, और फिर POP और SMTP का मैंने बता दिया। Now hypertext transfer protocol, it is created set of rules to transfer web pages in World Wide Web. Every web page has to follow this protocol. Unable to transfer any kind of data over the web and other client server without HTTP. On requesting any web page by the user, its loading is possible only by HTTP. अब ये फिर से आ गया, देखो used to perform tasks like upload and download, transfer the files over the internet, तो फिर वहाँ पे ये इस्तेमाल होएगा। केवल वेब पेज का व्यू करना है तो फिर HTTP होगा। हालांकि FTP में भी HTTP का प्रिकर्सर के तौर पे होता है। Then IMAP, Internet Message Access Protocol. It is used to store the mail sent by the user on mail server. This is helpful in accessing the mail during login by entering the mail ID and password by the user. तो वो वहाँ तुम्हें पड़ा हुआ दिख जाएगा because of this feature IMAP. Gmail में inbox में पड़ा हुआ मिल जाता है, खो नहीं जाता है, पड़ा हुआ रहता है।
So it is used to store the mail sent by the user on the mail server. Now miscellaneous में the world's first WAN was developed by the Defense Department of America, ARPANET. तो ये पहला वाइड एरिया नेटवर्क था वर्ल्ड का, ARPANET. It was established WAN in India for education. ARNET, I think इंडिया में जो WAN establish हुआ था, that was called as ERNET, that is Education and Research Network. That was the first WAN. And ICNet, National Information Centers Network, the network connecting each district of India. And then we have SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications is linking the banks internationally. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं WAN के. जैसे तुम्हारा इंडिया का हो गया एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क ERNET, इंडियाज़ लार्जेस्ट WAN. पूरे वर्ल्ड का पहला WAN बताएं तो ARPANET हो गया, NICNet हो गया कनेक्टिंग ईच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, एंड SWIFT हो गया सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस. ठीक है, फिर तुम्हारा ये क्या है कुछ टर्म्स हैं नेटवर्क से जुड़े. इसमें पहले देखो बॉड क्या होता है. बॉड, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. इट इज़ मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड. तो बिट्स पर सेकेंड को ही तुम बॉड भी कह सकते हो. एंड रेट ऑफ स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन को हम लोग बॉड बोलते हैं. नोड्स होते हैं एंड पॉइंट और टर्मिनल ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क. एंड बेस बैंड, द कम्युनिकेशन मीडियम इन विच देयर इज़ लेस बैंडविड्थ अवेलेबल फॉर द डेटा ट्रांसफ़र. सो इसको नैरो बैंड भी कह सकते हैं. ठीक है, बेस बैंड इज सेम एज नैरो बैंड. सर्वर तुम्हें पता है क्या होता है, RS-232 फॉर ट्रांसफरिंग सीरियल बाइनरी डेटा और सिग्नल्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस बाय केबल. A standard is used. It is used to connect modem, printer, mouse, etc. with the serial port of the computer. तो RS-232 वहाँ इन चीज़ों से जुड़ा है. ठीक है, सिंपल सीरियल कनेक्शंस इस्टेब्लिश करना है जैसे मॉडम, प्रिंटर, माउस एट्सेट्रा. तो ये RS-232 यहाँ पे काम आता है. ब्रॉडबैंड बता चुके, a communication medium in which a signal with a large bandwidth is available. Transmission speed is very fast, capable of providing a DSL. The bandwidth range of highest and lowest frequency available at the time of data transmission. Measurement is done in hertz. ठीक है, speed of data transfer को हम bandwidth कह सकते हैं. Quite similar to baud. Speed of data transmission is high when the bandwidth is high. The first computer network which was said Ethernet was manufactured in 1973. So ये पहला जो कंप्यूटर नेटवर्क था दैट वाज कॉल्ड एज ईथरनेट 1973 में बनाया गया था. ठीक है, अब कुछ कम्युनिकेशन मेथड्स हैं, इस पे बार बार सवाल आते हैं. जैसे सिम्प्लेक्स, अब देखो डायग्राम से ही समझ में आ रहा है. यूनिडायरेक्शनल होता है एक ही तरफ. एबल टू सेंड डेटा बट अनएबल टू रिसीव. बेटर परफॉर्मेंस दैन HDX एंड FDX. तो जैसे इसमें कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, यूनिडायरेक्शनल TV हो गया, रेडियो. तो यहाँ पे सिम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल होता है. ड्यूप्लेक्स में देखो, a road in which traffic can flow in both directions. Duplex communication system, a point-to-point system consisting of two or more connected parties or devices capable of communicating with each other in both directions. तो ये सिम्प्लेक्स के मुकाबले बेटर परफॉर्म करता है डुप्लेक्स. अब ये भी दो प्रकार का होता है, HDX दैट इज़ सेमी हाफ डुप्लेक्स और एक होता है FDX दैट इज़ फुल डुप्लेक्स. क्या फ़र्क होता है इसमें देखो, बोथ साइड्स में बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बट नॉट सिमल्टेनियसली. नॉट सिमल्टेनियसली जहाँ लग जाएगा सो दैट इज़ हाफ डुप्लेक्स. कम्युनिकेशन इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, जैसे वॉकी टॉकी हो गया. लेकिन अब टेलीफोन मोबाइल हो गया, इसमें एक ही सिमल्टेनियस समय पे उधर से भी बोल सकते हो, इधर से भी बोल सकते हो और सुन सकते हो. बोथ साइड्स एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एट द सेम मोमेंट, सो दैट बिकम्स फुल डुप्लेक्स. ठीक है, नाउ कम्युनिकेशन मीडिया की बात कर लो. तो ये जो अनगाइडेड मीडिया या जिसको हम वायरलेस बोलते हैं, उसमें तुम कैसे ट्रांसमिट कर सकते हो डेटा. देखो रेडियो, माइक्रो, इन दोनों को याद रखो, इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है. फिर सैटेलाइट का भी इस्तेमाल होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन. ब्लूटूथ और इंफ्रारेड का उतना ज़्यादा नहीं होता है. ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं तुम्हारे वायरलेस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के. फिर गाइडेड मीडिया में तुम्हारा ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, और ईथरनेट तो अब यूज़ नहीं होता है ज़्यादा, बट ये सारे एग्जांपल्स याद रखो. ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स, ईथरनेट. इसमें ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोवेव का जो है ये जो बैंडविड्थ होता है 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है.
तो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ्स बिटवीन 1 mm एंड 1 मीटर यूज्ड, नो सॉलिड मीडियम रिक्वायर्ड, अ रिपीटर यूज्ड बिटवीन 20 to 30 किलोमीटर्स। ठीक है, तो माइक्रोवेव की लिमिटेशन है 20 से 30 किलोमीटर। और पैराबोलिक एंटीना यूज़ होता है माइक्रोवेव में। फिर रेडियो वेव की बात करें तो ये और भी ज़्यादा होता है। दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुज वेवलेंथ इज़ बिटवीन 1 मीटर to 100 किलोमीटर्स, अवेलेबल इन बोथ मैन मेड एंड नेचर मेड। तो इसका फ्रीक्वेंसी तो नहीं दिया है, बट रेंज याद रखो। तो रेडियो हैज़ अ ग्रेटर रेंज दैन माइक्रो। ठीक है, और फिर सबसे ज़्यादा रेंज क्या हो जाएगा सैटेलाइट का, दैट इज़ एस्टैब्लिश्ड 36,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। तो एक्चुअली एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को इंस्टॉल कर दिया जाता है ऊपर इतनी 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे, और फिर हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल टीवी वगैरह दिखाने में होता है। ठीक है, अब ब्लूटूथ हम बता चुके हैं। इसका ब्लूटूथ में क्या होता है, रेडियो वेव्स आर बेटर देन माइक्रोवेव्स मैं बता चुका हूँ। ठीक है, 100 किलोमीटर तक इस्तेमाल हो सकता है, बट इन दिस केस ये ब्लूटूथ 100 मीटर तक इस्तेमाल होता है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 2.8 गीगाहर्ट्ज़, इसको रट लो, ये बार बार आता है। तो सो दैट इज़ रेडियो वेव्स एंड 2.4 से 2.8 गीगाहर्ट्ज़। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लूटूथ। फिर इंफ्रारेड की बात करते हैं। इंफ्रारेड की बात करो तो ये काफ़ी लॉन्गर वेवलेंथ वाली होती हैं। और ये सब क्या पूछ रहा है यार, छोड़ो। वाईफाई देखो, इसका फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी है, अ डिवाइस फॉर एक्सेसिंग द नेटवर्क एंड इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स। अब ठीक है, लाईफाई होता है लाइट फिडेलिटी, ये भी वायरलेस है। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन दैट इज केपेबल ऑफ यूजिंग एलईडी फॉर सेंडिंग डेटा एंड फोटो डायोड फॉर रिसीविंग। तो इसमें फोटो डायोड का इस्तेमाल होता है। नाउ अब ये क्या है, WLL, सो वायरलेस लोकल लूप, local wireless technology used to provide telephone facility with large bandwidth. It's a local wireless technology used to provide telephone facility with large bandwidth and high speed of data transmission. ये अदर वायरलेस टेक्निक्स हैं। एक होता है WLL, वायरलेस लोकल लूप। ठीक है, और एक होता है WIMAX, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, तो ये कुछ अन्य वायरलेस टेक्निक्स होती हैं अपार्ट फ्रॉम वाईफाई, लाईफाई, WLL, WIMAX, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। और ब्लूटूथ हम बता ही चुके हैं, रेडियो वेव्स बता चुके हैं। ठीक है ना, अब ये कुछ केबल्स वगैरह हैं, तो इतना रोकते हैं पहले। अब जैसे ये केबल्स तो ये केबल्स हैं, जैसे बता चुके हैं कि ट्विस्टेड पेयर होता है। उसमें क्या होता है कि कॉपर का इस्तेमाल होता है। 1 मिलीमीटर राउंडनेस क्या होता है, डायमीटर होगा। ठीक है, टेफ्लॉन इंसुलेटर्स होते हैं, कॉपर वायर होता है 1 मिलीमीटर डायमीटर। तो दीज 2 वायर्स आर ट्विस्टेड एंड बैलेंस्ड। ठीक है, नॉइज रिडक्शन इन द केबल होता है, केपेबल ऑफ बीइंग कैरिड अ सिग्नल विदाउट रिपीटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। ठीक है, अभी हमने एक जगह देखा था कि 20-25 किलोमीटर के बाद फिर रिपीटर की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन सा होता है, मेरे ख्याल से माइक्रो होता है क्या, नहीं, कौन सा होता है वो, रिपीटर इज यूज बिटवीन, हाँ माइक्रो ही तो होता है। तो कम्युनिकेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय 300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़। A repeater is used between 20 to 30 किलोमीटर्स। ठीक है, हाँ, और ब्लूटूथ एम्प्लॉयज द टेक्नोलॉजी ऑफ रेडियो वेव्स, ये नीचे लिखा हुआ है। ब्लूटूथ में क्या होता है कि ये देखो लिखा है रेडियो वेव्स, यूज़ ऑफ रेडियो वेव्स बिटवीन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टू 2.8 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, सो ये हो गया। फिर हम ये देख रहे थे कि कॉपर वायर्स का 1 मिलीमीटर का राउंडनेस यानी डायमीटर, टेफ्लॉन इंसुलेटर, और 1 किलोमीटर तक कैरी कर सकता है डेटा। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल है। इनइक्वालिटी मेंटेनेंस ऑफ बोथ वायर्स थ्रू विच सिग्नल्स डोंट मिक्स टुगेदर, डेटा स्पीड पॉसिबल मोर देन 1 Mbps। ठीक है, तो दैट वाज ट्विस्टेड पेयर। देन वी हैव दिस कोएक्सियल पेयर। अब कोएक्सियल का डायग्राम देख लो, ये होता है मैन्युफैक्चर्ड इन सिलेंड्रिकल फॉर्म एज पर कोएक्सियल केबल अकॉर्डिंग टू इट्स नेम। और यहाँ पे यूज़ ऑफ इंटरनेट सर्विस along with watching TV broadcasts using cable modem with it, ये और एडवांस होता है, 10 Mbps कर सकता है, इसलिए टीवी और इंटरनेट ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल होता है मॉडेम के साथ कोएक्सियल केबल्स में। मोर यूजेज इन टीवी नेटवर्क्स, और ये बेटर होता है, मतलब बेटर दैन ट्विस्टेड पेयर केबल बिकॉज इसका लॉन्गर डिस्टेंस होता है और हाई बैंडविड्थ। ठीक है,
बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन फिर फाइनली ये फाइबर ऑप्टिक होता है केबल, तो इसमें अल्ट्रा थिन फाइबर होता है। अब ये तुम जानते तो हो, फोटो डायोड का इस्तेमाल इसमें भी होता है। केपेबल ऑफ डूइंग वर्क्स बेस्ड ऑन कंप्लीट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट हैज़ वेरी लो नॉइस, हाई बैंडविड्थ, हाई स्पीड एंड लो सिग्नल नॉइस। ये क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स आर यूज्ड इन दिस। बस ये याद रखो, TDM एंड WDM टेक्निक्स आर यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिशन। तो इसमें 300 Mbps तक की डेटा ट्रांसफ़र स्पीड मिल सकती है, ठीक है। ईथरनेट केबल, ये तो पहला था हमारा, 1973 में बनाया गया था। दिस केबल इज़ अवेलेबल इन सेवरल वेरिएंट्स और शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए होता है, वर्क अप टू 100 मीटर्स। इट इज़ ऑल्सो एबल टू ग्रो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ब्रिज। और ये लोकल एरिया नेटवर्क शॉर्ट डिस्टेंस 100 मीटर्स तक के लिए होता है फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, मॉडेम्स, राउटर्स, टेलीफोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडिया, अब ये क्या है यार, छोड़ो। फिर ये होता है कि एक डायल अप लाइन होती है और एक लीस्ट लाइन होती है, डेटा ट्रांसमिशन सर्विस। बस इसमें फुल फॉर्म देखते चलो, ठीक है। तो GSM का क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और ये होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल GSM, और ये होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। और ADSL होता है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, ठीक है, और सिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। देन ISDN क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। CDMA क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और 3G जो कम्युनिकेशन होता है मोबाइल फ़ोन में, जो BSNL चल रहा है ना, उसमें CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, फिर उसमें सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। देन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, दैट इज़ ISDN। GSM होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, और ठीक है। देन ये क्या है, वायरलेस ब्रॉडबैंड, मैंने बताया था WLL और WiMAX भी होता है। विद हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर इज़ पॉसिबल विदाउट वायर। एक पॉइंट ये याद रख लो, 2 टेक्निक्स हेयर आर वाईफाई और एक होता है WiMAX। डायल अप लाइन एस्टैब्लिश्ड एंड यूज्ड लाइक टेलीफोन लाइन विद द हेल्प ऑफ मॉडेम। देन ये क्या है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है, a method of data transfer that requires coordination between sender and receiver before the signals can be sent। तो जैसे कि वॉइस एक्सचेंज ओवर टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, in this method it is not necessary to establish coordination between the sender and receiver during the data transfer, but the data is always ready to be received। जैसे ईमेल होता है, ठीक है, रेडियो होता है, तो दैट इज एसिंक्रोनस। नाउ अभी हमने बताया था फाइबर ऑप्टिक्स में टाइम डिवीजन और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल होता है। CDM कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल 3G नेटवर्क में होता है। एक सेकंड, और फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, कौन सी 2 टेक्निक्स, TDM और WDM, ठीक है, TDM और WDM, टाइम डिवीजन और वेवलेंथ डिवीजन। तो ये अब मल्टीप्लेक्सिंग के कितने तरीके होते हैं, तो देखो 4 तरीके होते हैं। TDM WDM तो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक CDM होता है जो 3G, और एक FDM फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्स डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो 4 होता है, बस इतना याद रखो, ठीक है। फिर ये सब छोड़ो, स्विचिंग टेक्निक ये भी छोड़ दो। फिर ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब PAN होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, छोटा सा, कंप्यूटर नेटवर्क्स कनेक्टेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी पर्सन और एंटिटी, 10 मीटर होता होगा बस, ठीक है। फिर LAN है लोकल एरिया नेटवर्क, जो ईथरनेट वगैरह केबल से बनाते हो, 1 से 10 किलोमीटर। देखो एग्जाम्पल में ईथरनेट लिखा है। फिर ये क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये भी हो गया, जैसे वाईफाई हो गया, ठीक है, बाय मेकिंग यूज़ ऑफ रेडियो वेव्स। फिर ये कैंपस एरिया नेटवर्क, ये बेकार है, छोड़ो इसको। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो अब इसमें 100 किलोमीटर तक हो सकता है रेडियस, ठीक है। जैसे केबल टेलीविज़न नेटवर्क जो पुराने ज़माने में होता था, केबल टीवी चलती थी ना। फिर वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये हम बता ही चुके हैं, पहला ARPANET हो गया, इंटरनेट हो गया, ERNET हो गया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और स्विफ्ट पोर्टल हो गया। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। फिर ये कुछ टोपोलॉजीज़ हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी का डायग्राम देखो, ये ऐसा बस होता है। ऑल नोड्स ऑफ वन केबल कनेक्टेड टू ईच अदर, ट्रांसमिशन टू अ पर्टिकुलर एड्रेस बाय डिवाइडिंग द डेटा इनटू पैकेट्स यूजिंग ईथरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ ईथरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। और बस टोपोलॉजी में क्या है, ट्रांसमिशन टू अ पर्टिकुलर एड्रेस बाय डिवाइडिंग द डेटा इनटू पैकेट्स यूजिंग ईथरनेट प्रोटोकॉल। अब डायग्राम इसका देखो, ऑल नोड्स ऑफ वन केबल कनेक्टेड टू ईच अदर, सारे नोड्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, नहीं, सारे नोड्स कनेक्टेड हैं
ट्रांसमिशन लाइन से एंड इनडायरेक्टली थ्रू ईच अदर, ठीक है। देन फिर रिंग टोपोलॉजी में डायग्राम देखो ऐसे होता है, ऑल नोड्स फॉर्म बाय जॉइनिंग रिंग्स और लूप्स, ईच नोड इज एबल टू सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नोड, ठीक है। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी, मेथड्स ऑफ इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट नोड्स और टर्मिनल्स। फिर ये तो नेटवर्क वाला क्या हो गया, डायग्राम नहीं बनाया। फिर स्टार टोपोलॉजी हो गया, मेकिंग एनी वन नोड होस्ट और सेंट्रल हब, अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय दिस हब, ऑल नोड्स आर एबल टू कम्युनिकेट थ्रू होस्ट और हब कंप्यूटर्स विदाउट डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद ईच अदर, ठीक है। तो दैट इज स्टार टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में ईच नोड कनेक्टेड टू ईच अदर, हाँ ये सबसे ज़्यादा मतलब कनेक्टेड होता है, यूज्ड इन बिल्डिंग बैकबोन नेटवर्क्स, ईच नोड इज केपेबल ऑफ सेंडिंग इट्स ओन डेटा in addition to forwarding data received from other nodes. If the number of machines is n, the number of cables will be, अब ये फॉर्मूला तुम गूगल करके देख लेना क्योंकि यहाँ पे केबल्स का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। और ट्री टोपोलॉजी होती है, इसमें स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अ होस्ट और हब, ठीक है, तो ये छोड़ो। फिर हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज लाइक बस, रिंग, स्टार, मैश। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, बस में क्या है कि बेनिफिट क्या है, लेस इजी टू ऐड न्यू नोड, ये एक एडवांटेज हो गया। इन केस ऑफ एरर इन वन कंप्यूटर एंटायर कंप्यूटर इज अनअफेक्टेड, वेरी चीप नेटवर्क होता है ये। अगर कोई एक नोड में खराबी आती है बस नेट टोपोलॉजी में तो पूरा नेटवर्क ख़राब नहीं होता है, द एंटायर नेटवर्क इज़ अफेक्टेड इफ़ देयर इज़, अगर केबल में ही दिक्कत हो गई तब तो फिर पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। Each node requires a special hardware. Single node is able to transmit data to a single node at a time. अच्छा, तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। फिर रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि no need for host or central hub. Communication through another route is possible if there is an error in cable. ये इसका एडवांटेज है। Communication through another route is possible if there is a error in cable in one part of the cable, ठीक है। इसका ड्रॉबैक है, its speed depends on the number of and structure of computers connected to the network, entire network affected due to repeaters error, अगर रिपीटर ख़राब हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। स्टार में क्या है कि the rest of the network is unaffected by a node or cable fault, तो ये और अच्छा हो गया, ठीक है। network unaffected by adding a new node, इसमें लॉस क्या है कि the entire network is affected when a fault occurs in the central hub। फिर ट्री टोपोलॉजी में क्या है कि easy to manage and maintain, ease in fault finding maintenance, if one node is damaged the other network is unaffected, point to point wiring for individual segments, इसमें ट्री में बहुत ज़्यादा केबल का इस्तेमाल होता है और डिफ़िकल्ट टू वायर एंड कन्फिगर, तो बस एक ये याद रखो, लार्जर केबलिंग रिक्वायर्ड इन ट्री टोपोलॉजी। हालांकि एडवांटेज होता है कि इफ़ वन नोड इज़ डैमेज्ड द अदर नेटवर्क इज़ अनअफेक्टेड। मैश टोपोलॉजी में डिसएडवांटेज पहले देख लो, मोर केबल्स और वायर्स रिक्वायर्ड, बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस इज़ एक्सपेंसिव। लेकिन एडवांटेज मैश में होता है कि ट्रांसमिशन इज़ अनअफेक्टेड बाय एडिंग अ न्यू नोड एंड इसमें सीक्रेटली डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो और कोई ख़राब भी होता है नोड तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाइब्रिड तो छोड़ दो, ठीक है। अब ये क्या है कि अ मिक्सर ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज वाज यूज्ड ड्यू टू देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट नेटवर्क विच वाज कॉल्ड हाइब्रिड, ठीक है। अब नेटवर्क गेटवे होता है, यूज्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स और लैंड्स यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ब्रिज क्या होता है, यूज्ड टू मेंटेन डेटा फिल्टरिंग, सिग्नल, ट्रैफिक एक्सेट्रा। टू पोर्ट्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग आर अवेलेबल, तो ब्रिज से क्या होता है बेसिकली एक इनकमिंग पोर्ट और एक आउटगोइंग पोर्ट, यूज टू ट्रांसमिट डेटा बाय चेकिंग डेटा पैकेट्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, तो ये ब्रिज करता है। अब रिपीटर और राउटर में डिफरेंस क्या होता है कि रिपीटर इज यूज टू सेंड वीक सिग्नल्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर दे आर डिस्ट्रॉयड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय रेप्लिकेटिंग एंड रीजनरेटिंग। राउटर यूज टू फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन IP एड्रेस, its function is to deliver the data to the specified address by the shortest and fastest route. It is used to transmit data in the right direction through routing cable. फिर स्विच और हब, अब ये सब छोड़ो। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एक ये चीज़ याद रख लो, ठीक है। और ये क्या है, बैकबोन नेटवर्क। अब जहाँ पे कई लैन मिल के एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं तो उनमें ज़रूरी होता है कि कोई एक को तुम अपना बैकबोन नेटवर्क बनाओ। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेटवर्क वेयर मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स आर यूज्ड टू कनेक्ट टुगेदर, ठीक है। फिर ये सब क्या है, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बीच डिफरेंस देख लो। इंटरनेट यूज्ड बाय एवरीवन, नो यूज़र नेम पासवर्ड रिक्वायर्ड, सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन यूजर्स डिवाइस, पब्लिक नेटवर्क। इंट्रानेट होता है फायरवॉल डिपेंडेंट, यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड ओनली व्हेन ऑर्गेनाइज्ड by only one organization, it's a sort of private network.
एक्स्ट्रानेट होता है बाय मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन, यूज़र नेम पासवर्ड दिस इज स्टिल रिक्वायर्ड, और फायरवॉल भी डिपेंडेंट होता है। ये भी एक तरह से प्राइवेट है बट अ लार्जर प्राइवेट नेटवर्क। तो इंटरनेट हो गया सबसे बड़ा, इंट्रानेट हो गया विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन, एक्स्ट्रानेट हो गया विच इन्वॉल्व्स मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड। अब ये क्या है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, हाँ इस पे तो डायरेक्टली हम देखे थे, हमारे सिलेबस में मैंशनड है। तो ये लास्ट, ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा है। देखो सबसे पहले क्या था, द इनिशियल नेम ऑफ इंटरनेट वाज ARPANET 1960 में। उसके बाद 62 में क्या हुआ कि आइडिया ऑफ इस्टेब्लिशिंग इंटरनेट डन बाय प्रोफेसर JC लिकलाइडर, फादर ऑफ इंटरनेट इज प्रोफेसर JC लिकलाइडर। इस पर भी सवाल बन सकता है, ईयर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। द आइडिया ऑफ इस्टेब्लिशिंग इंटरनेट वाज डन बाय प्रोफेसर JC लिकलाइडर। हालांकि ये जो पहले ARPANET बना था दैट वाज अ स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क इन द डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ द US। उसको बाद में और विस्तार किया था JC लिकलाइडर ने 1962 में। देन 1967 में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी स्टार्टेड डिस्कशन टू बिल्ड ARPANET, मतलब और बड़े स्तर पे। 1969 में डेवलपमेंट ऑफ ARPANET बाय द डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ द US। 1974 में टेलनेट एंड कमर्शियल यूज़ ऑफ ARPANET पॉसिबल। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1974 टेलनेट आ गया था जिसकी वजह से commercial use of ARPANET became possible and use of the word internet in place of ARPANET for the first time happened in 1974. 1982 में development of TCP/IP हो गया था। 1987 में construction and commercial use of Unix and Unix network, ठीक है। Then 1989 में HTML आ गया था। And by the way वर्ल्ड वाइड वेब कौन लेके आया था, टिम बर्नर्स ली। तो HTML और www 1989 में आया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। 1990 में द ARPANET एंडेड एंड द इंटरनेट एज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स रिमेन्ड। ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। गोफर क्या है, GOPHER वॉज डेवलप्ड बाय पॉल लिंडेर एंड मार्क मैकहिल। डेवलपमेंट ऑफ वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। तो आई थिंक ये 1991 में गोफर बना था, सॉर्ट ऑफ अ वाइड एरिया नेटवर्क सर्वर। देन पॉसिबल 1992 में पॉसिबल टू सेंड ऑडियो एंड वीडियो ओवर द इंटरनेट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेट सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ www बाय टिम बर्नर्स ली, हम जानते हैं। और Mosaic was the first graphical web browser used on the World Wide Web, was developed by Mark Andreessen. Free access of www started from 1993, available by CERN. और इसके बाद फिर सीधे यहाँ पे आ जाओ ना, 1990 W3C बना था 1994 में, जबकि www बना था 1992 में, 1991 में गोफर के समय। एनीवेज इंडिया की बात करें तो बिगिनिंग ऑफ इंटरनेट सर्विस इन इंडिया बाय विदेश संचार निगम लिमिटेड, दैट इज़ VSNL, 15 अगस्त 1995। अब इसको देख लेना बार बार तो समझ जाओगे, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा।